Let's sing a song full of hope, full of. And Patricia Fallon, she is running for the Sub-Circuit 12. I choose to vote for this party. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अमेरिका डायरी पे। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं अमेरिका डायरी पे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज यहाँ पे 3 नवंबर है और आज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डल रहा है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से अमेरिका में एक राष्ट्रपति चुना जाता है और क्या प्रोसेस है राष्ट्रपति चुनने का और वोट डालने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Close to the sun. तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये पोलिंग सेंटर है जहाँ पे वोट हो रहा है और यहाँ पे 2 मोहतरमा खड़ी हैं जो कि अपनी अपनी पार्टी की तरफ से लोगों को बताने के लिए खड़ी हैं कि इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए है तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए इनसे बात करते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? It's democracy. Here, let me turn my radio down. How you doing? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? I'm doing very well. It's a beautiful day to vote, isn't it? राइट, यू आर फ्रॉम डेमोक्रेट राइट? Yes, these are Democrats. It's Michelle Darbro. She's running to be the representative of the 20th district, which is the northwest side of Chicago, Edison Park, Norwood Park, parts of Park Ridge, Niles. Yeah, she's with the other party. She's with the Republicans. She is campaigning for a candidate for the 10th Senate district. जब इनसे पूछा कि यहाँ पे सिर्फ आप 2 पार्टी के कंपेनर यहाँ पे हैं, तीसरी कोई और पार्टी है क्या, तो बताने लग गई कि हाँ तीसरी पार्टी भी होती है। Not campaigning today that I've seen. It's just been the 2 of us. Okay. And not for nothing, but she got here very late. I was here for 4 hours by myself. Okay. I got here when I opened at 7. But there are third-party candidates in some of the races, but none of them. No, I haven't seen any signs or any campaigners. Okay. And what do you see, like who is going to win? Do you have any Man, kind of? this race is going to be tight as far as Darbro and Stevens. Stevens has a lot of name recognition because he's, the mayor of Rosemont. He's been around for a long time, and the legislator that held his seat before that, the McCulloughs, had it for 45 years. So it's been Republican for over 45 years. So Darbro could pull this out, and it would be a great victory. Right. And what about the president? Who is going to win? Do you have any kind of? I'm feeling good about Joe Biden winning. Joe Biden? I do feel good about it because of how many early votes are already in. Florida just a few moments ago hit 100% of what they had voted back in 2016. Right. So that's looking good too. That's great. So I have my, but I'm cautiously optimistic because I got my hopes up last time. Correct. I'm not doing that again. And the other thing people need to know, not here necessarily because it's been moving pretty quickly. Right. But if you are in line when it's 7 o'clock, you still can vote. So they won't close the voting until the last person that got in line by 7 o'clock. Okay, that's great. Yep. Yep. Thank you so much. So come on out and vote. Come dance with me. The sun. Close to the sun. तो अभी हम ये पोलिंग बूथ है इसके अंदर जा रहे हैं। वैसे मैं वोट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि जो यहाँ पे सिटीजन है वही वोट कर सकते हैं, तो मेरा वोटिंग करना अलाउड नहीं है। बट मैं वोटिंग सेंटर के अंदर आया हूँ जस्ट सिर्फ देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे वोटिंग होती है। तो यहाँ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपना नंबर और आईडी दिखाकर अंदर जाकर वोट कर रहे हैं। सो मेरे साथ एक लेडी हैं जो इन्होंने अभी वोट देकर आए हैं, तो अभी उनसे बात करते हैं कैसे वो डिसाइड करते हैं कि वोट किसे देना है और कैसे देना है। What's your name? Paris. Hey, hi Paris. So just wanted to know, like, how do you decide to vote somebody? Do you see 4 years work? Do you see the roadmap ahead? I just vote the way my party represents itself. Okay. My party has laws in place for women and people who are disadvantaged in the long term, and that's pretty much how I vote. It depends on who you are, your values, and that's what you decide. Like, Right. I decide because of how I am in the United States. The last question. So why there's a rule to be a president just 2 times, not more than that? 2 terms only.
That's so they don't keep being president forever. That's like a dictator. Dictators be president for 50 years, and we don't want that. Because we don't want a dictator. We don't want a king. We don't need a king. We don't need a dictator. It's to make it fair. A few minutes later. तो ये कैथलिक चर्च है यहाँ पे। ये एक पोलिंग बूथ है जहाँ पे वोटिंग हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पोलिंग होता कैसे है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या प्रोसेस है, कितनी पार्टियाँ हैं, उस पर बात करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ पे जो बड़ी पार्टी है, 2 पार्टी है, एक रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेट। तो डेमोक्रेट से जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो हैं जो बाइडन, और जो ट्रम्प साहब हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 3 रूल हैं, यानी कि 3 कंडीशन फुलफ़िल होने चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी अपने आप को घोषित कर सकता है। पहला तो ये है, जो भी महिला या पुरुष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए अपना नाम देना चाहते हैं, उनकी उम्र कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा ये है कि वो अमेरिकन बॉर्न होना चाहिए, अमेरिकन बॉर्न सिटीज़न, यानी कि यहीं पे कोई पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए और यहाँ का सिटीज़न हो। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो 14 साल से इस कंट्री में रह रहा हो। ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ पैदा हुआ और किसी और कंट्री में रह रहा है और फिर कहे कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो नहीं बन सकता। तो ये 3 कंडीशन फुलफ़िल होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए। भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं वो अपने लिए एक रनिंग मेट, यानी कि एक साथी चुनते हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी घोषित कर सके। तो ट्रम्प ने अपने साथ फेंस करके जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए हैं। और अगर जो बाइडन की बात करें तो उनके साथ जो है वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि इंडिया में टीवी न्यूज़ चैनल पे काफ़ी उनका नाम लिया गया है, बोला गया है। और उसका कारण ये है कि जो कमला हैरिस हैं वो एक तरह से उनका कनेक्शन कुछ इंडिया से है, इंडिया ओरिजिन से है। उनके शायद माता या पिता उनमें से कोई एक इंडिया के हैं, तो इसलिए इंडिया के न्यूज़ चैनल में काफ़ी उनका चर्चा हुआ था। Is there any specific reason there is no other party campaigner here, like Republican? I'm not sure, but based on the number of people that I've seen come out to vote, I think that this is a slow polling place, and I think a lot of people have already early voted, to be honest. I mean, because I've worked at other locations and there was been like lots of lines. So like what is the process of early voting? Early voting is 14 days before election day, and you can early vote at different places in your city, and then on election day is where you come to your specific precinct. Okay, so for early voting people can vote online or like by ballot or by post? They can do mail-in ballots, but it's recommended, because today is election day, that you drop off in a secure ballot box at the location. And that was also happening at the early voting places. Okay, so my question was like, for the early voting, people had to go to the polling place? Yes. Or okay, so it's Or like they in could person. mail it in if they had enough time. Okay. Yeah. Did you vote too? Actually, I am not eligible to vote here. Okay. I'm not the citizen of US. Okay. So yeah, so I cannot vote. In But due time. right. But yeah, I just wanted to know how people are voting here. Sure. What is the like a campaigning process and all Sure. the things. So that's why I'm Yes. visiting the places. Oh, wonderful. Yep. Thank you. That's awesome. Thank you so much. And how do I'll let you turn it off. I have a question for you. तो शुरू करते हैं कि यहाँ पे वोटिंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे 2 मेजर पार्टियाँ हैं, एक है रिपब्लिकन, दूसरा डेमोक्रेट। और टोटल जो सीट है यहाँ पे कांग्रेस में, यानी कि इंडिया में पार्लियामेंट जो कहते हैं यहाँ पे कांग्रेस कहते हैं। और यहाँ पे टोटल जो सीट है 538 है, 538 सीट है, जिसमें कि टोटल 270 सीट कह लीजिए या वोट कह लीजिए, 270 वोट लाने होते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि यह स्टेज कैसे है। यहाँ पे टोटल 3 स्टेज है जिसके थ्रू इलेक्शन का प्रक्रिया पूरा होता है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। वैसे आप लोग में से कुछ लोग ये कहते होंगे कि अमेरिका में लोग सीधे राष्ट्रपति को चुनते हैं,
बट ऐसा नहीं है, डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते, इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो शुरू करते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे जो चुनाव का प्रक्रिया है तकरीबन साल से 1.5 साल पहले से शुरू हो जाता है। यानी कि जो मेजर पार्टी यहाँ पे है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, तो दोनों पार्टी में से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं। हर एक पार्टी में से, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेट है तो डेमोक्रेट में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो उस हिसाब से तकरीबन 10 से 12 लोग दोनों पार्टी की तरफ से अपने आप को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को राष्ट्रपति उम्मीदवार कहते हैं। तो दोनों पार्टी का अपना अपना मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि 10-10 उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए हो गए। अब ये पार्टी डिसाइड करती है कि 10 में से वो किनको राष्ट्रपति पद के लिए चुनना चाहते हैं। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी सभाएं करती है और जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके लोग हैं उस पार्टी में, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा, हमारे पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा प्रेसिडेंट के तौर पे। तो अगर मैं डेमोक्रेट की बात करूं तो डेमोक्रेट में जो बाइडेन है और रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ये पहला चरण ख़त्म हो जाता है। इनके पास राष्ट्रपति के पद के जो उम्मीदवार हैं वो उनको मिल जाता है अपने पार्टी का चेहरा। उसके बाद अब ये जो उम्मीदवार हैं जैसे कि जो बाइडेन और ट्रंप, ये दोनों पूरे देश में घूम घूम के रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं और अपना जो काम है वो गिनवाते हैं और आने वाले समय में इनका क्या रोड मैप है, क्या करना चाहते हैं देश के लिए। इनके पास जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर मेडिकल से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इनके पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, अपने वोटर्स को लुभाते हैं। तो दूसरा स्टेप है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन जो होता है जिसमें कि पब्लिक जाकर वोट करती है। दोनों पार्टियों की तरफ से स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होती है जिसे लोग वोट करते हैं। यानी कि हर एक स्टेट में कुछ सीट्स होती हैं जहाँ पे दोनों पार्टी के लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जब जनरल इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है 3 तारीख को शाम को 7 बजे तक जनरल इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इन सीटों पे जो चुनाव लड़ा गया है या चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उनके वोटों की काउंटिंग शुरू होती है और फिर ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो चुने जाते हैं इनको इलेक्टोरल्स कहते हैं। जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनका होता है इलेक्टोरल्स कॉलेज। यानी कि इलेक्टोरल्स कॉलेज के जो लोग हैं या जो चुनकर आए हैं अब उन लोगों से राष्ट्रपति चुना जाएगा। यानी कि पता सबको है कि डेमोक्रेट के राष्ट्रपति के उम्मीदवार कौन है, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कौन है, लेकिन अभी तक भी ऑफिशियली कि औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति का घोषणा नहीं हुआ है। यानी कि 538 यानी 538 जो लोग चुनकर गए हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, अब वो लोग अपने राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे और जिस पार्टी के नेता यानी कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 270 वोट पाएगा वही राष्ट्रपति ऑफिशियली चुना जाएगा। और इस तरह से जनवरी में जाकर ये प्रक्रिया कंप्लीट होता है और जनवरी में एक दिन डिसाइड होगा जो कि उस दिन इनॉग्रेशन डे कहते हैं। इनॉग्रेशन डे जिस तरह से इंडिया में कहते हैं शपथ ग्रहण, उसी तरीके से यहाँ पे इनॉग्रेशन डे होता है जिसमें राष्ट्रपति को औपचारिक तौर पर घोषित किया जाता है।